ابھی بھی موجود ہے. یہ کوئی جو ہمارے لوگ جو سنائیں گے آپ کو، یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، لیکن محنت کرنے سے ایسے حاصل ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسرائیل، میکائیل، جبرائیل اور اسرافیل کو آپ نے ڈانٹ دیا تھا، حضرت اسرائیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ میری امت کے ساتھ برتاؤ محبت کا کرنا. آپ جب روح نکالتے ہیں تو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو ڈانٹ دیا تھا آپ نے، میری امت کے افراد کی جب روح نکالیں گے تو بہت سہولت سے نکالنا. تو حضرت اسرائیل نے کہا تھا جب سے میں پیدا کیا ہوں آج تک میرے پر ایک حکم آتا رہتا، اور مجھے اس کی وجہ سے ڈر ہے کہ کہیں اس کی نافرمانی نہ ہو. تو کیا حکم آتا؟ کہا کہ امت محمدیہ کے نظام میں سہولت کا برتاؤ کرنا. جسم سے جو روح نکالتے ہیں یہ تکلیف ہوتی ہے انسان کو. کتنی بڑی بات تھی. تو ایسا پھر معراج میں جو آپ تشریف لے گئے تو ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے. معراج کا واقعہ عجیب و غریب بات ہے. ایسے غیر معمولی چیزیں صحابہ کرام، اولیاء اللہ دیکھتے. اولیاء اللہ کا بھی ایسی معاملہ تھا. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک مرید نے منکر نکیر کو ڈانٹ کے حقال کر لگا، میرے پیر آ رہے بنے، اور حضرت نے مدد فرمائی قبر میں. تو حضرت تو سید الاولیاء تھے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. مشکل یہ ہوا کہ ہم اولیاء اللہ کا نام چھوڑ دیے تو لوگ ہم کو کافر بول رہے، اور جو لوگ اولیاء اللہ کا نام لے رہے وہ دھڑا دھڑ ان کو سجدے کر رہے ہیں، وہ ان کو بدنام کر رہے ہیں. تو دونوں طرف سے بے دینی پھیل گئی، ان کی طرف سے بھی ہم بھی اولیاء اللہ کا نام لینا چھوڑ دیے. ان لوگوں کا احسان ہے ہم تک دین پہنچا. اور دوسرا علماء کا، علماء نے محنت کر کے ہم تک دین پہنچایا ہے، قرآن اور حدیث. تو کئی کتابیں ہمارے پاس ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی گئی. خصوص الحکم، اس میں لکھا، انہوں نے خود مصنف نے لکھا ہے کہ سرکار میرے خواب میں آئے اور کہا کہ تو خصوص الحکم لکھ اور یہ امت کو دے. تو وہ انہوں نے کہا کہ میں خصوص الحکم لکھوں گا کیسے؟ کہا کہ لکھنے بیٹھے پورا خصوص الحکم کتاب لکھ دی. تو بعد میں جیسی سرکار نے بتایا تھا ہو بہو ایک لفظ حرف کی تبدیلی نہیں تھی. ویسی کتاب آج دنیا میں موجود ہے ہمارے پاس، ہمارے سامنے میرے سرانے رکھی رہی تھی. سرکار نے جو ہے لکھ کر کے امت کو دیا ہے خصوص الحکم. ایسی کئی کتابیں ہیں جو حضور کے دربار میں پڑھی گئی اور کہا گیا کہ امت کو دے دو. خصوص الحکم دنیا کی ایسی عجیب و غریب کتاب. ہمارے علماء اگر اس کو غور کریں گے تو بہت سینہ کھلتا ہے، علم کھلتا ہے. تو ہمارے کام میں جو لگے ہوئے علماء ہیں، میں ان کو بار بار بولوں تو میرے ساتھ آیا کرو، میری باتیں سنتے جاؤ، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو تم چلاؤ اور کرو، تم کو فائدہ دے گا. دنیا میں تم کو علم آئے گا. ایسا ہمارے سلسلے کے علماء کو. تو یہ چیز ایسی ہے غیر عالم کو بھی مل جاتی ہے. ولایت معرفت جو ہے ایک دم ان پڑھ پھٹیچر فقیر کا آدمی ہے اس کو ولایت مل جاتی ہے. ولایت کس کو بھی دیتے ہیں. میں رات میں سنا نہ چرواہے کو. ایسے کئی اولیاء اللہ ان پڑھ ہیں، کچھ نہیں آتا پڑھنے ان کو. ابھی 150 سال پہلے مصر کے شیخ عبدالعزیز دباغ سے، دباغ بولے تو یہ چمڑا رنگنے والے تھے. چمڑے رنگنے والے کو بولتے ہیں، انگریز بولتے ہیں ان کو، انگریز تھے. شیخ عبدالعزیز ایسا علم آیا، دنیا کے بڑے بڑے علماء خدمت میں بیٹھتے تھے. ان کی کتاب ابریز تبریز میرے پاس رکھی ہوئی ہے. عجیب و غریب باتیں لکھی ہوئی شیخ عبدالعزیز دباغ.
ایک حداد گزرے ہیں لوہار کے، بہت بڑے ولی کامل لوگ، لوگوں کو معلوم کیسے ہوا، رات میں کیا کرتے تھے، آگ جلاتے تھے، اس میں لوہا ڈالتے تھے اور ہاتھوں سے اس کا بناتے تھے، کلاڑی، چاقو، چھرے، ہاتھوں سے آگ میں سے نکال کر۔ لوگوں نے دیکھ لیا، بس اسی دن سے مشہور ہو گئے، بہت بڑے ولی کامل حداد لوہار تھے، حداد لوہار کو بولتے ہیں۔ اور ہمارے پاس ایک ذکر ہے، ذکر حدادی، لوہار جیسے لوہے کو مارتا نا ایسا آواز آتا، کئی قسم کے، ایک ذکر ہے ہمارے پاس آرہ، ذکر آرہ بولے تو کاٹنا، ذکر کرتے رہیں گے نا تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے الگ ہو جاتے ہیں اور سارا جسم الا اللہ الا اللہ الا اللہ کرتا رہتا ہے۔ ذکر آرہ کہتے ہیں، بہت آسان ہے وہ، لیکن نہیں کرنا آپ لوگ کبھی بھی۔ ایسے بہت سارے ذکر ہیں۔ تو یہ ہمارا مذہب جو ہے روحانی مذہب ہے، باطنی کیفیات اس میں رہتے ہیں، اس کو نہ مشکل مت سمجھو۔ تو میں سب سے پہلے جو ہے یہ کیا نام تمہارا، میں بھول گیا، ہاں اکبر، حافظ اکبر، یہ ذکر کے بہت پابند ہیں، اور ایک بیکری کی دکان میں کام کرتے ہیں، لیکن بہت اچھی کیفیت ہے ان کی۔ ہر شخص اپنی کیفیت کو بیان کرے 5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 10 منٹ کے اندر تو ان کی زبان سے آپ سنو۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 دن تک مسلسل خواب میں آتے رہے، اب ان سے سنو۔ کھڑے رہو، یہاں کھڑے رہو، ادھر منہ کرو، ادھر بتاؤ لوگ کیا دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ تاثرات جو آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں وہ اس لیے پیش کرنا ہے تاکہ ہمارے اندر معرفت کا جذبہ پیدا ہو اور ہمارے اندر معاملات کے اندر استقامت پیدا ہو کہ الحمدللہ جب اس راستے کے اندر بڑھنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مسلسل 6 دن تک بیت الزیارت نصیب فرمائی۔ اور ابھی فی الحال جو ہے تو کچھ مہینے پہلے حضرت نے علماء کرام کا جوڑ رکھے تھے، تو اس سے تقریباً 2 دن پہلے سرکار کی پھر زیارت ہوئی۔ تو وہ زیارت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس ہم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا فرما رہے تھے، جب مجلس کا اختتام ہوا تو ہماری آنکھ کھلی، تو آنکھ کھلتے ہم کو ایسا محسوس ہوا کہ ہم نے یہ خواب نہیں دیکھا بلکہ حقیقت دیکھی، کیونکہ ہمارے آنکھوں میں نہ نیند تھی نہ کوئی تھکاوٹ۔ اور الحمدللہ ایسے کہہ دے تو اولیاء اللہ کو ہم نے دیکھے خواب کے اندر، اور بہت سی ایسی چیزیں دیکھے کہ ہم جو کتابوں کے اندر سنتے ہیں کہ اللہ کے خزانے زمینوں کے اندر ہے، آسمانوں کے اندر ہے، اور تو وہ سمندر کے اندر ہے، تو وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے دکھایا۔ یہاں تک کہ جب ہم ذکر تحری کرتے ہیں تو کئی مرتبہ ایسا محسوس ہوا کہ آسمان کے دروازے کھڑا کھڑ جو ہے تو بج رہے ہیں، جیسے ضرب لگ رہی ویسے وہ دروازے بجنے لگے۔ اور الحمدللہ جب سے ذکر میں لگے تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، استقامت دی، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ نے تو توفیق دے، استقامت دے کہ جب تک زندگی ہے اسی راستے کے اندر لگ کے اور معاملات کی پابندی کریں۔ جزاک اللہ۔ ہاں ہمارے عامر یہ ہمارے سلسلے کے بہت پرانے مضبوط آدمی ہے اور بڑے تاجر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہم کو اللہ کا نام لینے کے لیے قبول کرا۔ اس کے بعد میں حضرت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا نام کیسے لیا جائے وہ ہمیں سکھایا، اس کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ اور میں پہلے جو ہے ذکر سے بیت ہونے سے پہلے کی زندگی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ انسان کی جیسی نفسیات ہے ویسی میری بھی نفسیات تھی کہ آنے والا مستقبل میرا کیا رہے گا، میں یہ چیز پر سوچتا رہتا تھا۔ جیسی بیت ہوا الحمدللہ وہاں سے بھی کم ہی وقت میں معین الدین چشتی کی بشارت ہوئی، وہی چشت بول رہا ہوں بول کے میرے کو دوسرے دن ہی ملاقات کرے اور ایسا ہاتھ ملا، تو میں بولا کہ ایسا ہاتھ ہمارے انڈیا میں ملاتے ہیں، تو نہیں بولے مسافہ دونوں ہاتھ سے کرتے ہیں،
यहाँ आ जाओ मेरे पास में, तकलीफ नहीं होने दूंगा। तो फिर हम वहाँ से निकले बगैर रिजर्वेशन के, ट्रेन में गए। तो ट्रेन यहाँ औरंगाबाद से कश्मीर वहाँ तक के आसानी से गए। उसके बाद में वापसी में बहुत ज़्यादा रश था, तो वहाँ पर ट्रेन में एक बुजुर्ग थे जो वाइट कुर्ते पजामे में थे, उसने 6 सीट जीते थे और वो हमारे को दिया, वहाँ से गायब हो गए। तो वो चीज़ हमें भाग गई कि भाई, फिर मैंने वो घर पे वापस आया, ये मामला क्या थे वो मामला मैं देखा और अपनी पिछली ज़िंदगी में देखना सोचा कि भाई पिछले ये चीज़ हुई थी क्या, नहीं हुई, तो फिर ये चीज़ हकीकत है। उसको मैंने मजबूती से पकड़ा और अपना काम समझा और अपना काम समझ के हर चीज़ अपने को पेश करने लगा वो चीज़ के लिए, और अल्लाह से नीयतों को सही करने की तौफीक करा कि भाई अल्लाह करने वाली बात अल्लाह की है, मैं जो नेक नियति से करूँगा सिर्फ अल्लाह के लिए करूँगा और अल्लाह से ही हासिल करूँगा। तो ये चीज़ होते होते जो है, तो फिर बाद में अल्लाह ने मेरे को अलग अलग तरीके से बशारतें दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब ज़िक्र अस्कार के जो मज़े है वो उठाने लगा हूँ। अपन ने सोचा है कि नमाज नूर है, नमाज सुकून है। अपन अगर बहुत ज़्यादा करोड़ रुपए लेके खर्चा करते हैं दुनिया में, तो अपने को वो चीज़ मज़ा नहीं देगा जो चीज़ अल्लाह के नमाज के बाद में आप 10 मिनट दिल पे तवज्जो डाल के अल्लाह पर ध्यान देंगे, तो वो जो मज़ा आएगा वो आप कितने भी पैसे देके दुनिया में घूमेंगे तो वो चीज़ नहीं मिलेंगी। ये चीज़ हज़रत ने हमें काम को सिखाया। हज़रत जो बताते हैं वो मुस्तकिल इजाज़त से करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे ज़िंदगी के मज़े दे रहा है। अब हमें ऐसा लगा है कि ज़िंदगी में ये ज़िंदगी का हकीकत मकसद है और ये काम सही है। जो बशारतें हम सबको होती है, ये चीज़ ऐसी बताए, मैं अपने नज़दीक सोचता हूँ कि ये सही रास्ता है बोल के अल्लाह वक्तन फक्तन हमको बशारतें कराता है और आने वाले कल की चीज़ें हमको कभी ना कभी दिखाते रहता है कि काम मजबूती से पकड़ो और ये काम सही है। तो ये चीज़ हमें तो बहुत शुक्रगुजार हमें अल्लाह ताला का भी और हज़रत का भी कि हज़रत ने हमें ये काम रास्ता बताया और हम ये चीज़ ये सोचता हूँ मैं हर एक साथी के लिए कि ये काम अपना समझे और अपना समझ के हर काम ये काम अपना समझे और हर काम में अपने को पेश करे और खालिस नीयत अच्छी लेके रखे कि खालिस अल्लाह देने वाला है, तो अल्लाह ताला अपने को नवाजेगा और जो ज़िंदगी का हकीकी मकसद है आप मकसद हासिल करेंगे। बस मैं इतना कहकर अपने जगह लूँगा। अरे वो चाँद कहाँ है? चाँद कहाँ है? ये मौसम खबर में रह के आए हुए हैं। अब दुनिया में कहाँ मालूम होगा खबर में क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। हम पहली ज़िंदगी में ऐसी थी, हम जो थे बहुत ही ज़्यादा गुजरे थे, तो हम ये जिक्र की कोशिश कर रहे थे हमको ऐसा जिक्र मिल जाए कि भाई कि हम मस्जिद में जिक्र करें। अशफाक भी हम दो दिनों से ऐसा मेरे दोस्त ने आए हुए यहाँ पर हम सोचते थे कि एक जिक्र ऐसे मिले कि हमको यार अपने मस्जिद में करें। हमारी कोई जायज़ बस्ती है, हिंदू की गरीब की बस्ती है, वहाँ पर हमारा बचपन ऐसे गुजर गया। अभी तक 1.5 साल पहले अशफाक भाई हम सोचने लगे यार आपको कुछ जिक्र मिल जाए ऐसा कि आप हम मस्जिद पावन करें। तो बड़े अपने बुजुर्ग रहे थे, ज़्यादा जिक्र करेंगे तो भटका बैठेगा, ये बैठेगा, वो बैठेगा। फिर अशफाक भाई हमारे एक आमिर साहब के साथ गए जो बारनू में रहते हैं, वो हजरत से आए बैठ हो गए। मुझे हजरत क्या ये चीज़ मालूम भी नहीं थी, तो उन्होंने लेके गए। फिर हजरत ऐसे इसकी बात है ऐसे रहता तो उसमें चल उन्होंने बैठ कर आए। फिर कुछ दिन पहले मेरे साथ मामला होते थे मौत के बहुत दिनों से, लेकिन उल्टे होते थे। जैसे वे करना पड़ता था। एक बार बैठ के 15 दिन पहले मेरे से ऐसा मामला हुआ, मेरा इंतकाल होगा। जैसे सही तरफ से रखते सीधी तरफ से उल्टी तरफ से रखा गया और यहाँ पर मोहम्मद दिख गया है। फिर बाद में हजरत से बैठ हो गए। मैं बैठ होने के बाद तो मेरा फिर और एक खाब गिरा ऐसा, तो खाब में इंतकाल हो गया। सब कुछ मुझे लेके जा रहे, तो फिर मुझे कब्र में रख दिया। सब ऊपर के सब प्रोग्राम हो गए, तो मैंने चलो अब आपका काम बाकी है सब। तो मेरी कब्र एक चौड़ी कर दी गई। फिर एक मैं बोला या अल्लाह मैं खुद गुनहगार हूँ, मैं एक कब्र के अंदर आया तो अल्लाह ने रोशनी पहले करी पहले सीधे तरफ से, तो अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ। तो ऐसा गर्म लगा, तो दूसरी बार अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ, दूसरी रोशनी जो पैर की तरफ से, तो पैर की तरफ से पूरा ठंडा हो गया मेरा। फिर मैंने बोला चलो यार आप मुमकिन नहीं कि आप जवाब देना है अपने को, जैसा भाई थोड़ा जैसे ही। तो फिर आवाज़ आई कहीं से मीन रब्बू का, मेरा रब अल्लाह है, वो चिल्लाए मैं वहाँ पर। फिर मैं दिनों का मेरा दिन इस्लाम में जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना जम के चिल्लाया जैसे मेरा उंगली फैला गया है ये साइड से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक बताते मेरी आँख खुल गई। तो इस तरह मेरा
साथ ऐसा वैसे 2-3 बार हुआ है अलग अलग तरीके के। तो पूरे कोई इसकी कितने का हजर को माता है तो हजर में इसका कर जज़ाकल्लाह। अरे भाई वो उस कौसड़ी के 2 आलिम कहाँ हैं? नजीब साहब इधर आए, अब्दुल हमीद औरंगाबाद के। अगर वो कुछ बोले तो अब्दुल हमीद की कैफियत सबसे बेहतर कैफियत है ये। अब्दुल हमीद इधर आओ। और वो कौसड़ी के दोनों आलिम और किसको बोला था मैं? और जो भी अपने तासुरात सुनाना चाहे यहाँ आओ और सुनाओ। अभी अब्दुल हमीद यहाँ है, ठीक है? तुम आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल मा'i वद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु मसलुल हय्यि वल मय्यित। अज़ीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, हम में से हर शख्स सुकून और इत्मीनान की तलाश में है। वो चाहता है कि मुझे सुकून और इत्मीनान हासिल हो जाए और अलग अलग तरीके और हरबे अपनाता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सुकून और इत्मीनान अल्लाह के जिक्र के अंदर रखा है। अल्लाह का जिक्र करने वाला मुर्दे की मिसाल जिंदे और मुर्दे की सी है। जिक्र करने वाला जिंदा है, जो जिक्र नहीं करता वो मुर्दे की मानी है। यानी अमाल तो हम करते हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन बेजान है। ये नमाजों के अंदर खुशू नहीं, अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं, ऐसी इबादत नहीं कि अल्लाह हमको नज़र आ रहा हो, आलम गैब हम पर पड़ रहा हो। जिस तरह इबादत करने का हुक्म है वो भी हासिल नहीं हो रही। इसलिए शेख कामिल बुजुर्गों से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। हम कौसड़ी शहर के अंदर फरागत की बात से 2018 से तलब थी कि कोई शेख कामिल मिले जिनसे हम बैत हो। अल्लाह का फजल करम हुआ, एक बंदे खुदा गुलजार भाई अल्लाह ने भेजा, जिन्होंने कहा कि अपनी मैं जिंदगी की मजलिस देनी है। तो हमने पूछा कैसे लगा कि जो पीरी मुर्शिदी ढोंगी बाबा वगैरह चलते हैं ऐसा तो कोई नहीं है। तो गुलजार भाई ने कहा कि मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब है। फिर इतने नाम आ गए, बहुत बड़ी हस्ती है। कौसड़ी के अंदर फिर प्रोग्राम रखा गया, मरकज़ के अंदर काफ़ी लोग जुड़े और बैत भी हुए माशाल्लाह। उसके बाद से तकरीबन 1.5 साल के करीब होते आ रहा है। 2 हल्के चढ़ रहे मुफ्ती लुकमान साहब का बस स्टैंड की मस्जिद में और मरकज़ के अंदर हमारा हल्का 25 से 30 लोग उसमें बैठते हैं और साथियों को बहुत सारी खूबी हासिल हो रही है, बशारतें भी हासिल हो रही है, फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। इसलिए हज़रत भी चाहते हैं उलमा इस काम से जुड़े और इस काम को आगे बढ़ाए, क्योंकि हर फील्ड में है। दावत तबलीग का मिशन है, दीनी मदारिस के अंदर दीनी तालीम का हासिल करना है। और ये जो तसव्वुफ सुलूक का सिलसिला है, ये सारे सिलसिलों को उलमा इकराम चला रहे हैं और अल्लाह ने उनके सीनों पर इसको खोला है। तो हम भी इस बात की कोशिश करेंगे कि इस काम को आगे बढ़ाएं। बाकी खूबी और कमालात की बात है तो सबसे बड़ी खूबी और कमाल यही है कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत से जुड़ने के बाद से जिक्र की तौफीक अता फरमा रहे हैं टूटे फूटे अंदाज में, और हमको उससे फ़ायदा हो रहा है और मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। और एक चीज़ ये है कि हमारे इलाके के अंदर जब हम जिक्र वगैरह की चीज़ें शुरू करते हैं तो लोगों के जहनों में ये है कि जब ये जिक्र शुरू करेंगे तो दावत तबलीग से दूर हो जाएंगे, जिक्र शुरू करेंगे तो दीनी मदरसे से इनका ताल्लुक खत्म हो जाएगा। एक गलत सोच लोगों के अंदर बैठी हुई, उसलिए मस्जिद के अंदर जिक्र शुरू होने के बाद उसके अंदर रुकावट और लोग डालना शुरू कर देते हैं। तो हमारे साथी जो है तो हजरत की तो मंशा बहुत ऊँची है, दीनी मदारिस से भी आपको वास्ता है, हदीसों के अंदर भी आपका काम है, दावत तबलीग की फील्ड में अभी अल्लाह ने आपसे काम दिया है। तो जो सोच है उसके मुताबिक हम काम करें। अल्लाह ताला ने जो मामूलात हजरत ने हमको बताए हैं उन मामूलात को भी पूरा करें। उन मामूलात को पूरा करने के साथ साथ हम जो है तो एक दूसरे के रफीक बनकर काम करें कि उन मामूलात को पूरा करें, फिर दावत तबलीग के फील्ड में जाए। अल्लाह ऐसे कमालात और खूबियां पैदा करवाएंगे कि कामयाब फरमाते जाएंगे और दीनी मदारिस के फील्ड में काम करें हजरत के मामूलात को पूरा करते हुए, वहाँ पर भी अल्लाह बड़े बड़े काम लेंगे। अल्लाह हमसे बड़े बड़े काम लेंगे। तो हम सब एक दूसरे के रफीक बनकर सब लोगों को, हर फील्ड के लोगों को अपने साथ जोड़कर इस मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हजरत की बरकत से तमाम खूबियां अता फरमाएं। ये है अब्दुल हमीद, मेरे सिलसिले के बहुत ताकतवर आदमी हैं, बहुत मेहनती, बहुत मेहनत किया है इन्होंने। अब्दुल हमीद ने औरंगाबाद के, वो आपको अपने तासुरात बताएंगे इंशाअल्लाह। वैसे तो बहुत हालात हैं उनके, बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग हैं जो औलिया अल्लाह के मज़ार पर बैठे तो उनसे बातचीत करते हैं, उसमें से ये भी है और भी बहुत सारे लोग हैं। हालांकि कहाँ कौन मिलता आज, किसी मज़ार पर लाखों लोग जा रहे
لیکن صاحب مزار سے بات نہیں کر سکتے. اللہ نے ہمارے سلسلے میں ایسے لوگ پیدا کر دیے. اور کئی لوگوں نے تو مجھے ایسے بزرگوں کے نام بتایا جن کا نام نہیں تھا, نام بتایا کہ ان کا یہ نام ہے ایسا. تو عبدالحمید بہت میرے سلسلے کے بہت محنتی آدمی ہے اور بہت ساری کیفیات ہیں ان کی, لیکن تھوڑی بات جو بھی ہے آپ کو سنا دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز دوستوں, دراصل میں تو کچھ بھی نہیں, مجھے پڑھنا لکھنا تو کچھ بھی نہیں آتا, لیکن الحمدللہ ذکر کی برکت ہے, یہ سب قرآن کریم کی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے انوارات دکھایا. اور الحمدللہ یہ ذکر ہمارے پاس روزانہ ہوتا, ذکر شاہی مسجد میں ہوتا اور ذکر خفی ہوتا. ہمارے پاس الحمدللہ بہت سارے ساتھی اس محنت میں لگے ہوئے. تو ایک مرتبہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت نے بیان میں ہمیں بتایا تھا, تو میں حضرت کا بیان ہمیشہ سنتا رہتا ہوں الحمدللہ. تو رات میں جو ہے تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ میرے خواب میں آئے اور خواب میں آ کر کہا کہ یہ بہت اونچا کام ہے, اس سے ولایت کا منصب ملتا ہے, ولی بنتے اس سے. ہماری تربیت حضرت بتاتی کہ یہ کسی کام سے اللہ نے ہم کو یہاں تک لایا ہے, تو اس کام میں جمع رہنا اور اس میں محنت کرنا. یہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا بتا کے کچھ چیزیں ایسی عنایت کر کے مجھے واپس بھیج دیا اور کہا کہ روزانہ قرآن شریف کی پابندی, اللہ کا ذکر, اور یہ جو کام اپنی حضرت جو تمہارے شیخ ہے مفتی فضل صاحب جو بتا رہے اس پہ پابندی سے عمل کرنا. تو انشاءاللہ اس میں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ تم کو بہت ساری چیزیں نوازیں گا. اور دوسری مرتبہ جو ہے تو ایک مرتبہ آپ نے حضرت جو ہے تو ایک سمندر کا بہت بڑا, اس میں جو اپنی حضرت نے آواز دی اپنی امید اس کے سمندر میں قدیم مارا چلانا رہا. میں مجھے تو تیرنا نہیں آتا, لیکن مجھے وہ بات یاد دی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی کہ اپنی شیخ کی اطاعت کرنا. اس بنا پہ میں نے پانی کے سمندر میں پوری چھلانگ مار دی, تو جس میں حضرت خود تشریف فرما تھے اور بہت سارے اللہ تھے, اور پانی میں کوئی نقصان نہیں ہوا, کوئی تکلیف نہیں ہوئی پانی سے کسی کو بھی. وہ کہ اپن جس طرح ایسے بیٹھے ہوئے اس طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے. اور جب اس میں اللہ تعالیٰ نے 18,000 جو مخلوق پیدا کی, جو سمندر کی مخلوق ہے ساری ہمارے علم میں جمع ہوئی, اور سب کے سب ہم جو ہے تو اللہ کا ذکر کرنے لگے. پھر بہت دیر کے بعد 1 گھنٹے کے بعد جو ہے تو میں نے دیکھا تو سب چلے گئے, تو پھر میں باہر کیسا ہوں. پھر حضرت نے فرمایا اللہ ہو, تو میں نے اللہ ہوا, تو پھر میں واپس جو ہے تو پانی سے باہر آ گیا. جب میں خواب میں اٹھا دیکھا تو میرے قرآن کپڑے سے گلا, پورے آنگن میں جو ہے تو میرے پانی تھا. پھر اس کے بعد الحمدللہ ایسی بشرات بہت ہے. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ حضرت میرے پاس آئے اور ہاتھ پکڑ کے لے کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کے پاس. آپ نے سلام عرض کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے اور حضرت کو نام دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور بہت خوش ہوئے آپ. پھر ہمارے دوسری دن شب داری کی. شب داری کے عمل کے بعد پھر سرکار خان نے کہا کہ یہ بہت اونچا کام ہے, اس کو پابندی کے ساتھ کرنا. الحمدللہ ایسی چیزیں بشرت ہے. الحمدللہ یہ جو ہوئی بہت ہوتے رہتی ہے تمام ذاکرین کو. اور الحمدللہ کچھ دن پہلے ایک بزرگ میرے خان میں آئے, ہم ہمارے بھائی صدیق بھی اس کام سے جڑے ہوئے الحمدللہ. تو ہم دونوں کھڑے ہوئے تھے, ہمارے آپس میں گفتگو چل رہی تھی. ایک شخص آئے ہمارے پاس, ہم دونوں کو لیٹے گئے اور وہ خود کو لیٹے گئے اور کہا کہ اب یہاں پر زمین ختم ہو گئی, ابھی اس کے آگے دوسرا عالم رکھتا ہے. اور انہوں نے رومال دیا اور ہم دونوں کو دے دیا. تو میں نے ان سے نام پوچھا تو انہوں نے رومال دیے. تو اس پہ دیکھا میں نے رومال کو, تو اس پہ حضرت فضل علیہ السلام کا نام لکھا ہوا. میرے بزرگ دوستوں, اصل یہ اپنی واہ وغیرہ دے دے واسطے بتانا نہیں ہے, یہ حضرت کا حکم ہے, اس لیے بتانا ہے کہ اس کا کام کی جو برکت ہے, انوارات, یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی دوستوں. اس میں بہت ساری انوارات ہوتے ہیں انسان کے اوپر اور ہوتے بھی. تو یہ اس کے کمالات کیوں ہو رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی دوستوں, اللہ کا نام, اس کا کلام جو حضرت بتا رہے, اگر اس پہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ یقین مانو دنیا کے حالات درست ہو جائیں گے.
हाजी इमदादुल्लाह साहब माजिद मक्की ने भी बताया इस बात को कि अगर तुम करेंगे तो पूरी दुनिया के हालात दुरुस्त हो जाएंगे। तो फिर भाइयों बुजुर्गों, ये मेरा कमाल नहीं है, ये अल्लाह के जिक्र का, उसकी बरकतों का और ये शेख की तवज्जो, ये सब जो भी काम हुआ बैठने के बाद, वो इससे पहले कभी ज़िंदगी में कोई खबर भी नहीं पूछता था कि कोई कुछ भी नहीं होता था, कभी कुछ ख्वाब नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता। लेकिन हजरत की तवज्जो अल्लाह ताला ने हमारे को रखी है। इस सिलसिले में हजरत ने बताया कि जो इसमें मेहनत करते रहना, अपने अपने मुकाम पे, अपने अपने जगह जाके खुद पे मेहनत करना, हजरत की इताअत करना, ये तो हजरत का अपना पहला हुक्म है। अगर आप हम सब हजरत की इताअत करेंगे जिस तरह हजरत हम बता रहे, तो ये इससे ज़्यादा बशरत सबको होंगी कि मेरा कमाल नहीं, ये अल्लाह के जिक्र का कमाल है और हमारी हजरत की तवज्जो है हमारे पर। हाजी साहब ने बताया कि कामिल शेख की अलामत है, किसी को अगर कामिल शेख मिल जाए तो हर इंसान वली बन सकता है। अगर वली बनना हजरत बता रहे कि बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अनवारात होते रहते हैं। दरअसल बताने का मेरे भाइयों दूसरों को मकसद यही था हमारा कि आप जो है तो अपने अपने मुकामात पे जाकर मेहनत करें खुद से भी, तो आपको भी ये समान चीज़ें नजर आएंगी। क्योंकि जितनी पावरफुल रही तो लाइट भी वैसे जलते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेख है, उसमें अल्लाह ने उनको जरिया बनाया, तो उनका भी हमारे को उसकी वजह से भी हमारा अल्लाह ताला हमारे को इनायत फरमाना। उनकी तवज्जो के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह वालों की सोबत में रहेंगे और ये कामिल शेख की अलामत है हमारे, और अल्लाह ताला ने हमको जो है तो इस काम के लिए चुना। अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। बहुत सारे लोग हैं मेरे भाइयों दोस्तों, दुनिया है जो यहाँ पर है, औरंगाबाद है, पूरा बड़ा पड़ा है, लेकिन अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है तो अल्लाह ने हमको इच्छा बाबरकत काम दिया जिसमें हुजूर की इजाज़त होगी। और सारी दुनिया की दौलत भी उसके आगे कुछ भी नहीं है मेरे भाई दोस्तों। तो दुनिया के खजाने सब फेल है, क्योंकि वो देकर हुजूर की इजाज़त हो सकती। इतना कीमती अमल और इतना काम जो है तो अल्लाह ताला ने हमको दिया है। तो तमाम मात्रा से गुजारिश है कि अपने अपने मुकामात पे जाकर इसकी मेहनत करें तो अल्लाह ताला आपको ही अनवारात करेगा, आने वाले नस्लों को फ़ायदा हुआ। ये ऐसे अल्लाह ने इशारों से हमको बहुत सारे अल्लाह ने बताया है, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जिक्र यही होता है, उसमें ऐसे ऐसे लोग आते हम सोच भी नहीं सकते, देखे तो नाम भी नहीं बताते। आज भी हमारे औरंगाबाद शहर में बहुत सारे लोग आते हैं। एक वक्त तो जिक्र हुआ, जिक्र होने के बाद एक साहब खड़े थे, बाद में उन्होंने मिले और कहे कि मैं वक्त का कुतुब यहाँ कर कोई और बाहर का नाम बताया। तो ये हजरत ये जिक्र की बरकत है और हजरत की तवज्जो है। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हम इस सिलसिले में दाखिल हुए, इसकी अहमियत को हम समझे, इस काम को हम समझे, अपने शेख के मंशे को समझे। शेख जो बता रहे उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया तो हमारे कदमों में आ जाएगी। जैसे साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों में ही हमारे औरंगाबाद के शहनशाह रूम में एक बहुत बड़े बुजुर्ग है जो 2400 पालतू के ईमान, बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले गुजरे। तो उन्होंने अपना तख्ता छोड़ के इस काम में लगा दिया। इतने बड़े शहनशाह रूम के शहनशाह थे वाहिदुल्लाह जो हमारे पास आराम फरमान है, उन्होंने बताया कि मैंने शहनशाह छोड़ दी इस काम के लिए, मुझे अल्लाह को पाना था, मैं यहाँ अलहमदिल्ला वहाँ पर आराम फरमा रहे। तो ये मेरे भाई बुजुर्गों, ये जो हमारे को जो काम मिला अल्लाह ने, इसकी हमको कदर करना चाहिए। हमारा जमा होना इस बात का है कि भाई हमारे शेख तो हम समझे, उनसे रूहानी फैज़ अल्लाह ताला दे रहा हमको, हम जिक्र करेंगे तो हमारे अंदर आते रहेंगे, मुंतकिल होते रहेंगे। आयर ऐसी कहते हैं हमारे पास मस्कुरात में बहुत सारे हैं जो हमेशा आते बोलते रहते हैं हमारी रिश्तेदार वगैरह। तो इंशाअल्लाह आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस काम को करें। इसमें जो है तो बहुत अल्लाह विलायत का मनसब देंगे। हजरत तो बार बार बता रहे कि भाई आपको विलायत का मनसब देंगे, अल्लाह को तो वली पैदा होंगे। तो ये कोई काम मामूली नहीं है, क्योंकि हजरत हमको जानते पहचानते, हमारे अंदर देख रहे हजरत सलाहियत, इसलिए बोले ताकि आपके उम्मत को फ़ायदा हो, आपसे उम्मत को फ़ायदा हो, इसलिए हजरत बता रहे। तो इस काम में मेहनत लगे रहना, एक दिन भी नागा नहीं होना। ये तमाम अल्लाह जितने भी हैं कि ख़ाबर के ज़रिए बशर के ज़रिए हमको ये बता रहे, ये चीज़ साबित करे कि कुरान करीम अल्लाह का जिक्र कभी नहीं छोड़ना। इसलिए हजरत का हुक्म मानना है हम सबको, और इस काम को जो है तो घर में अपने रिश्तेदारों में और खुद पर अल्फा में मेहनत करना है। इंशाल्लाह करेंगे ना भाई इंशाल्लाह सब, और शेख की इताअत करना है। ये शेख की इताअत के बगैर कुछ भी नहीं मिलता। शेख की जो है तो इताअत करेंगे तो उससे हमारा चीज़ है, हमारा कमाल कुछ भी नहीं है। जिक्र का और कामिल शेख का, ये दोनों अगर मिल जाए तो इंसान गरीब बन सकता है। ये अल्लाह ने बताया। इंशाल्लाह मैं रखता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है तो हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। अरे भाई वो कौसड़ी के दूसरे आलिम कहाँ हैं? कौसड़ी के दूसरे आलिम कहाँ गए? कहाँ है मेरे समाज? कौसड़ी में मेहनत ऐसी हुई कि वहाँ के 2 आलिम अच्छा काम में लग गए इनके साथ में। और अस्सलाम वालेकुम। अहमद सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह
अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अजीज दीनी भाइयों, सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद में, कुरान मजीद की तिलावत में और अल्लाह को याद करने में, ज़िक्र के अंदर है। हम इसे बहुत दिनों से सुनते थे, लेकिन बहुत दिनों से हमारे दिल की ये चाहत थी, तमन्ना थी कि किसी शेख से हम भी बैत हो और अपना इस्लाही ताल्लुक़ कायम करें। लेकिन हम कश्मकश के अंदर थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद गुलजार भाई के ज़रिए से हज़रत को हमारी बस्ती के अंदर पहुंचाया और हमने हज़रत को देखा तो हमारे दिल के अंदर इत्मीनान हुआ, शर सद्र हुआ और हज़रत से हमने बैत की। तकरीबन आज से 1.5 साल पहले हज़रत हमारी बस्ती के अंदर अब तक 4-5 मरतबा आए। 1.5 साल पहले हमने हज़रत से बैत की और बैत करने से पहले मेरा अपना खुद मामूल ये था, मैं आलिम हूँ, मुफ्ती हूँ, लेकिन मैं बिलिस्तिआब कुरान मजीद सिर्फ रमज़ान ही में खोलकर पढ़ा करता था और जुमा को जुमा सूरह कहफ वगैरह की तिलावत किया करता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहदीद बिन नियामा के तौर पर हज़रत का हुक्म है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब से मैंने हज़रत से बैत की अब तक 1.5 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब तक 92 कुरान मजीद पढ़ चुका हूँ और 93वीं कुरान मजीद मेरी शुरू है। और रोज़ाना के मामूलात में मैं रोज़ाना 1100 मरतबा दरूद शरीफ, 1100 मरतबा इस्तिग़फ़ार, 2000 मरतबा ज़िक्र ख़फ़ी, ये सब मामूलात मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र के हज़रत से जुड़ने के बाद के हैं। और मेरी कैफियत है कि जब तक मैं कुरान मजीद की तिलावत और अपने मामूलात को पूरा ना करूँ, एक अजीब तरह की बेचैनी मेरे अंदर होती है। जब कुरान मजीद की तिलावत और मेरे मामूलात पूरे होंगे, उसी वक्त मुझे सुकून होता है। अब मैं कहीं सफ़र के अंदर भी जाऊँ तो जब मैं वापस आऊँ तो शाम में उस वक्त तक मैं नहीं सोता हूँ जब तक कि अपने मामूलात पूरे न करूँ। रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह बिला नागा के मैं 6 से 7 पारे की तिलावत भी करता हूँ और अपने सारे मामूलात पूरे करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की बरकत से हमारे बस्ती को बड़ा फ़ायदा हुआ है और 1 से 2 हल्के शुरू हुए और हमारी मस्जिद के अंदर, बस्तान की मस्जिद के अंदर भी नौजवान तबका जुड़ा है। 8 से 10 लोग, अभी 3 महीने हुए हमारी मस्जिद के अंदर मजलिस शुरू हुई, 8 से 10 लोग हमारे पास में बैठते हैं ज़िक्र के अंदर और हफ्ते में 2 दिन हम ज़िक्र करते हैं, ज़िक्र बिजर, आदि तस्बीह, पीर के दिन और जुमा के दिन। ये सारे फ़वाइद और ये सारी खूबियाँ हज़रत से जुड़ने के बाद में हासिल हुई। उससे पहले की ज़िंदगी एक अजीब तरह की बेचैनी और अजीब तरह की कैफियत थी। अब ज़िंदगी के अंदर ज़िक्र और कुरान मजीद की तिलावत के बाद में जो हलावत और जो सुकून है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। जब मैं कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ और ज़िक्र करता हूँ तो एक ऐसा अजीब मौसम होता है, एक ऐसा अजीब समा होता है, यूँ लगता है कि मेरी ज़बान के अंदर शहद डाला जा रहा है और ज़बान के अंदर अजीब तरह की मिठास महसूस होती है। ये खुद मैं महसूस करता हूँ। ये सारी चीज़ें, ये सारी बरकतें मुझे हज़रत से जुड़ने के बाद मिली है। मैं दुआ करता हूँ और आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला तादामी हयात मरते दम तक हमें कुरान मजीद की तिलावत और हज़रत जो फरमा रहे हैं ज़िक्र करने की, मरते दम तक अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और शेख की कदर करो, बहुत बड़ी हस्ती है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दी है, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। हम हज़रत की कदर करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे शेख की उम्र के अंदर खूब बरकत अता फरमाए, सेहत व आफियत के साथ हज़रत का साया तादेर हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए और हज़रत की तवज्जुहात और बरकतों से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाए। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। तुम भी कुछ बोलना चाह रहे हो? अरे भाई, वो सग़ीर खां साहब आए हैं क्या परभनी के? सग़ीर खां नहीं, अच्छा, कौसुली के अपने क्या नाम उनका? अयूब खां। हाँ, अमीन खां साहब आए हैं क्या? अयूब खां साहब आए? हाँ, नहीं, वो जो दावत करते थे, नहीं वो नहीं आए। उनका नाम था अयूब खां है ना? अच्छा, तुम ज़रा बैठो, समझे? अच्छा, ये हमारे ज़हीराबाद के मुतालिक है आबिदुर्रहमान, ज़ाहिदुर्रहमान, दीनदार घराना है, ज़िक्र करते हैं। अपने हालात मुख्तसर ज़रा बताओ।
اور وہ کہاں گئے اپنے نجیب صاحب کہاں ہیں؟ نجیب صاحب بیدر کے نجیب صاحب کہاں ہیں؟ ذرا یہاں تشریف لائیں تو ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے ادھر آ جائیں. الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور میرے پیر بھائیوں اور خلفائے کرام اور شیخ محترم، میں آپ حضرات کے سامنے جو کھڑا ہوا ہوں اس میں میری کوئی خوبی اور کمال نہیں ہے. یہ باتیں جو بتا رہا ہوں یہ تحدیث بن نعمہ کی شکل میں بتا رہا ہوں شیخ محترم کی اجازت سے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب 1.5 سال پہلے، لگ بھگ 2 سال ہوئے مجھے بیعت ہوئے، 1.5 سال پہلے میں ڈر کے معنی بتا نہیں سکتا کسی کو. اس سے پہلے بھی پروگرام میں آیا تھا میں، لیکن بتا نہیں سکتا. 1.5 سال پہلے میں مختصر میں 1.5 سال پہلے میں تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہوں ذکر کرنے کے لیے، ذکر خفی کے لیے بیٹھا. جب ذکر خفی کے لیے بیٹھا تو میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ شیخ محترم نے یہ 3 کام کرو کہ کیوں بولے. یہ ذہن میں ایک بات میرے، یہ 3 کام کرنے کو کیوں بولے شیخ محترم نے، یہ 3 کام کیوں بولے، اور بھی دوسرے بھی کام تھے نا. تو پیچھے سے آواز آئی، بولے پتا ہے بیٹا تیرے کو عابد، تجھے پتا ہے 3 سوال ہوں گے تجھے. میں اس کیفیت میں تھا، میں آدھے نیند کی حالت میں آدھے جاگے ہوئے حالت میں، کس کیفیت میں تھا اللہ عالم. یہ شیخ محترم کی نظر کرم کی برکت سے ہوا تھا. تو جب میں نے پیچھے دھیان لگایا تو آواز آئی بتایا تیرے کو 3 سوال ہوں گے. میں ایک دم ڈر گیا. پھر میں ہمت جٹا کے بولا جی ہاں 3 سوال ہوں گے. پوچھا جائے گا قبر میں کہ من رب ہوگا. تیرے شیخ اسی کی تیاری کرا رہے، بولنے لگا رہے کہ بول اللہ اللہ. پھر کچھ آواز آئی پیچھے سے کہ پوچھا جائے گا تجھے من دین ہوگا، تیرا دین کیا ہے. تیرے شیخ قرآن کی تلاوت کرا رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اصل دین اسلام ہی ہے بول کے قرآن مجید میں 3 بارے میں ہے یہ بتایا گیا پیچھے سے. پھر 3 سوال کے بارے میں بولے کہ پھر میرے بارے میں پوچھا جائے گا. تو میں ایسے پلٹ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھے اس ٹائم. بہت عجیب کیفیت میں آ گیا. بولے یہ کیا ہو گیا اللہ، رات کے 12-1 بجے کی رات کی کیفیت میں. بولا کون تھے یہ، کہیں میرے کو وسوسے تو نہیں گئے. اور یہ بات میں اپنے اندر چھپاتے اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کوئی کمال نہیں ہے، سارے کمالات میرے شیخ کے اور اللہ کے ہیں. میں جب پیچھے مڑ کے دیکھا، دیکھنے کے بعد کوئی بھی نہیں تھے. سوال یہ ہوا کہ 3 سوال یہ ہوگا میرے بارے میں پوچھا جائے گا. تو پلٹ کے جب دیکھا کوئی بھی نہیں تھے. تو اس ٹائم پہ میں بہت ٹینشن میں آیا، بہت بے چینی میں آیا. نہیں لگ گئی. اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور زیارت ہوئی مجھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف بلا کے بیٹھے اور بولے کہ بیٹا یہ جو خلیل الرحمن ہے نا، یہ تیرا شیخ جو ہے نا یہ معمولی ہستی نہیں ہے. یہ تم لوگوں کی فکر کرا رہا ہے قبر کے لیے. وہ ساری رات روتا ہے تم لوگوں کے لیے اور تمہیں اپنے قبر کی تیاری کروانا ہے. یہ تمہیں اپنے قبر کی سوالات کے جوابات یاد دلوا رہا ہے. تم اس کو مت لینا، اس کے ہر بتائے ہوئے بات پہ عمل کرنا. میں جہاں بھی خطابت کرنے جاتا ہوں اور آج میں ہر خطیبوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہر خطبے میں پڑھ رہے ہیں ہم. اس کے بعد جو بول رہے ہیں اس کو تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارا ذکر کرتے ہیں. ہر جمعہ خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پہ کھڑے ہو کے جو ہم بولتے ہیں. میں خود خطیب ہوں. میں کبھی جہاں پہ کوئی امام نہیں رہے مجبوراً کوئی اگر ضرورت پڑی تو مسجد کا خطیب بنتا ہوں جا کے. میں یہ سارے شیخ محترم کی باتیں بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ دیکھو یہاں پہ میں کھڑے ہو کے ابھی بولوں گا. کیا بولوں گا؟ اذکروا اللہ یذکرکم. ہم ہر جمعہ بتا رہے لوگوں کو کہ تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارا ذکر کرے گا. شیخ محترم کیا بتا رہے ہیں ہمیں؟
वही बता रहे हैं कि अल्लाह का नाम लो, अल्लाह अल्लाह करते रहो, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। अभी ख्वाब गिनाने के और कुछ बताने की वक्त भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। अल्लाह जानता है, शेख जानते हैं कौन कितने पानी में, अल्लाह जानता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये जो मैं अपनी ज़िंदगी का जो गुजरा हुआ बताया, हालांकि बैत होने से पहले मेरी ज़िंदगी बहुत अरगती में गुजरी, कुछ भी नहीं जानता था, क्या होता नहीं जानता था। अब आप खुद सोचिए कि मेरे जहन में जो सवाल आए कि ये क्यों करो बोले होंगे, तो मैं कितना हमारा था। तो शेख मोहतरम की नजर करम और निगाह करम की बरकत से, रूहानी फैज़ की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत और दीदार कराई। ख्वाब में देखा मैंने, और शेख मोहतरम को भी बहुत मरतबा ख्वाब में देखा मैंने, और उनके साथ बड़े बड़े अल्लाह वालों को देखा, प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैंने देखा शेख मोहतरम को। तो वाक़यात बताना ज़रूरी नहीं है, जितने भी खुतबा हैं, जितने भी खतीब हजरात हैं, मिंबर पे खड़े होकर सब कहते हैं उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम, तुम अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह तुम्हारा जिक्र करेगा। वदउहु यस्तजिब लकुम, तुम दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारी दुआएं सुन रहा। ये हर जुमा बोला जा रहा, यहाँ से तो सिर्फ चार शुम्बे को आवाज जाती है, हम तो हर जुमा बोलते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, खासकर उलमाए किराम, खुतबाए अज़्ज़ाम, आप लोगों को बड़े अदब और हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ये चीज जो है ना, ये कहीं नहीं है, देख लिया है, खुली आंखों से देखे हैं हम। ज़हीराबाद में अजीब तब्दीलियां आने चालू हो गई, अजीब हालात बदलने लगे। हम जो मिंबर पे खड़े होकर कह रहे हैं कि उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदउहु यस्तजिब लकुम वज़िक्रुल्लाहि तआला कहते हैं, और कौन इसके माने बता रहा, किसी को भी नहीं मालूम ही नहीं है। मुफ्ती साहब क्या बोल रहे हैं, मौलाना साहब खुतबे में क्या बोल रहे हैं कि वज़िक्रुल्लाहि तआला के माने क्या है, आला उसके माने क्या है, वआला उसके माने क्या है, वअज़्ज़ु वजल्ल वअज़्ज़ु अकबर के माने कुछ भी नहीं मालूम। बताओ खुदा अल्लाह के वास्ते, हमारी कौम बहुत प्यासी है, हमारी कौम के लिए सिर्फ एक शेख मोहतरम काफी नहीं है, सबको कमर बस्त होना होगा। सारे उलमा हुफ़ाज़ों को जमा हम इसलिए किए हैं, और ये इसलिए तय हुआ कि सब मिल के कहो, जैसे खुतबे में बताया जा रहा है कि तुम अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह तुम्हारा जिक्र करेंगे, ये आम कर दो। बहुत प्यासी है उम्मत, बहुत प्यासी है। ख्वाब में ऐसी चीजें बताया जा रहा है तो बता नहीं सकता मैं, इसलिए मैं नहीं ठहरा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने ख्वाब के ना, मैं ये बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि शेख मोहतरम की सिफारिश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। कायनात के सरदार आके कहते हैं कि तुम्हारा शेख जो बोले वो करो, तुम्हारा शेख गलत नहीं बोल सकता, और नाम लेके बताएंगे खलीलुर रहमान ने कहा तो करो ये काम, वो गलत नहीं बता रहा, वो तुम्हारी खबर की तैयारी कराने के लिए उसने तुम लोगों को ये मामला दिए, और कुछ चीजें नहीं थे। सुबह कलिमा पढ़ा सकते थे, चलो भाई 1000 मरतबा सुबह कलिमा पढ़ो। अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी बिन पैसों की बेइंतहा कीमती चीज अता कर दी है अल्लाह ने। ये हमें अल्लाह ताला का शुक्र कितना भी अदा करे तो कम है। अल्लाह ताला ने हम लोगों को बहुत बड़ी नेमतों से नवाजा है, और दूसरे भी लोग। वैसे तो हमारे पास हर एक हीरा है, हर एक, जैसे सहाबा थे न, कुल्लुकुम, तमाम सर सहाबा, कहा कि ये सब सितारे हैं, सारे के सारे सहाबा के बारे में, क्योंकि आपने सब पे मेहनत किया था तो सब सितारे बन गए थे सब, तमाम सर सहाबा। हदीस भी है कि हर सहाबी एक सितारा है दुनिया का। ऐसी अल्लाह के फजल से हमारे पास हर एक आदमी ऐसी है। अभी किसका सुनाएंगे, लेकिन सुनो चंद लोगों की, और भी कुछ लोग बोलना चाहते तो आ जाओ, कुछ सुनाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख्वाबों का सिलसिला तो आपको बहुत सारी कैफियतें और बहुत सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी, लेकिन एक मतलब प्रोग्राम से कुछ दिन पहले का जो है एक वाक़या सुना था, लेकिन मैं मौजूद को मेरा जो कहने का जो दिल में मेरी ख्वाहिश है आप लोगों के सामने, वो मैं उसकी बात रखूँगा। कुछ दिन पहले तो वैसे ख्वाब तो होते रहते हैं, इतने हो गए कि मतलब अब सुनाते बैठेंगे तो वैसे भी फजर हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, वो तो ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। कुछ दिन पहले जो है ऐसा अल्लाह ने तौफीक दिया कि आसमान पे सफ़र कर रहा हूँ,
और वो 3 ग्रेविटी थी ऊपर, 1 2 3 वहाँ का सफ़र तक किया, मतलब करने के अल्लाह ने तौफीक दिया। फिर देखने के बाद जो तो वापस आया, तो ये कैफियतें असल में ये चीज़ें तो है ही है। अब मेरे बाद भी जो लोग आएंगे वो भी इसकी इकरार करेंगे, लेकिन मैं आपको एक खास बात के ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे सिलसिले से इतने मुंसलिक लोग यहाँ पे इकट्ठा बैठे थे, तो मैं आप लोगों को एक खास बात कहना चाहता हूँ कि हम चूँकि इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसके फ़ज़ाइल देख रहे हैं, इसके फ़तवात देख रहे हैं, इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, आपको ये नहीं लगता कि भाई हमारा भी मतलब जब दीन फैला है तो उसका कोई ना कोई मरकज़ था? तो मेरे दिल में भी एक ख्वाहिश है कि हम लोग चूँकि ये शहर का काम नहीं है, ये सारे मुरीदीन का काम है कि हमारा भी एक मरकज़ी हैसियत से एक निज़ाम चालू हो, जिसे खानखाई निज़ाम कहते हैं, ऐसा काम चालू हो जिससे हमारे नस्लों में मुंतकिल हो। हमारे शायद हमारी तरबियत करते हैं, कितने सालों से कर रहे हैं, लेकिन इनका काम जारी रहना चाहिए, ये असल चीज़ है। हम लोग इस फजीलत को सुन के अपने कान को सुकून हासिल करके अपनी ज़िंदगी में गुम हो जाएंगे तो इसका मकसद हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इस काम को हर वो शख्स जो यहाँ बैठा है और जो नहीं बैठे हैं, उन सब की जिम्मेदारी है, एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं। वो अपनी ज़िंदगी के इतने सारे औकात अब हमारे लिए कुर्बान कर दिए हैं, तो हमें नहीं लगता कि वही कैफियत इनकी कैफियतें हैं जो इसके मालिक हैं। क्या हमें इस चीज़ की ख्वाहिश नहीं होना चाहिए कि हमारा कोई मरकज़ी हैसियत का कोई एक ठिकाना हो? हम अपनी तौर पे फिक्रे करें, अपनी कोताहियों को ख़त्म करें, और एक बात ध्यान में रखें कि अल्लाह पाक किसी चीज़ का मोहताज नहीं, ना आपके पैसों का मोहताज है, ना इंसान के सरों का मोहताज है, किसी चीज़ का मोहताज नहीं। जो अल्लाह अपने बंदों से काम लेना चाहता है वो लेके दिखा चुका। हमारे पास अभी एक मौका बचा हुआ है कि अल्लाह हमसे काम ले लेगा। अगर से इतना बड़ा मजमुआ अगर से जो हज़रत बताते हैं इस मामला की पाबंदी करेंगे तो मुमकिन है, अल्लाह की तरफ से ऐसी उम्मीद है कि मुमकिन है कि हम सारे मुल्क को घेर सकते हैं, सारे मुल्कों के सारी दुनिया को इस मारिफत की तरफ लेके आ सकते हैं। तो हम लोगों के भी दिलों में अपने जाकिर है, इसकी बहुत शदीद ख्वाहिश होती है कि भाई एक ऐसा निज़ाम हो जो खानखाई एक निज़ाम हो, और अल्लाह का निज़ाम हो, जिसमें जो है औलिया अल्लाह जो तो तैयार होकर निकले। तो ये हर कोई महसूस करे, किसी की जिम्मेदारी नहीं, कोई पैसे वाला दिखा तो उसके पीछे तक है कि तू बना तू बना तू बना। अल्लाह सबको तौफीक तो देगा, लेकिन हमारी फिक्रें पैदा करे कि भाई ये शेख की जिम्मेदारी नहीं है। अगर तो कोई समझ रहा है कि शेख जो है तो मदर शेख जो है क्या कहते हैं उसको खानखा बना देंगे, ये कर देंगे। आपको इस चीज़ की पूरी कैफियत मालूम हो गई कि जाकिर के अंदर कैफियतें क्या हो रही है। अगर से माइक अगर से मुंतकिल कर दूँ सबकी कैफियत के लिए, तो यकीन मानो कल सुबह हो जाएगी और कल रात हो जाएगी, कैफियतें खत्म नहीं होंगी। ये सिर्फ ज़बान की लज्जत और दिल का सुकून की खातिर हम लोग यहाँ पे बैठे नहीं हुए, हम लोग अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक इस इस्तिक़ामत के साथ जुड़ने के लिए बैठे हुए। तो मेरी आप सबसे एक अदबना एक दरख्वास्त है कि हम सब फिक्र करें, हम सब जाकिर हैं और हम सब जिम्मेदार हैं। कोई एक जिम्मेदार नहीं, खलीफा बनने से उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। छोटे से छोटा जाकिर, बड़ा से बड़ा जाकिर, हमारी नस्लों में मारिफत को मुंतकिल करना है, शहर का काम बाकी रखना है, तो वो उसके लिए जो हम सबको तैयार होना पड़ेगा। ऐसा कोई एक जिम्मेदार इस काम का नहीं है, सब जिम्मेदार इसकी फिक्रें करें कि हम लोग एक ऐसा निज़ाम कायम करें कि हजरत जब अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह उनसे जो हमारा तादर उनका साया हमारे सर पे बाकी रखे। अल्लाह ना करे अगर से हमसे छूट जाएंगे तो क्या करेंगे, किसको मुँह दिखाएंगे, किससे पास अपना सवाल लेके जाएंगे? कौन है हमारा तो सुनने के लिए तैयार है? कौन हमारी कैफियतों को सुनता है? पता है अपने बाप के सिवा या कोई बात वाले भी सुनता नहीं हमारी बात सुनते हैं, हमारी निगरानी करते हैं, उन्होंने अपनी फर्ज निभा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं ये देखिए, सिर्फ हमको सिर्फ माल चाहिए, खाली सेहत चाहिए, आए के बाद दुआ पढ़ के भूखे लेते हैं, ये भी शिफा का एक तरीका है। लेकिन इस काम को अपने नस्लों में मुंतकिल अगर से करना है तो इस काम को समझ लें हम सब, और इस बात को जहाँ तक जो लोग नहीं आए उन तक भी पहुँचा दें कि हमको एक ऐसा मरकजी काम करवाना है हज़रत की निगरानी में, जो निज़ाम जो तो क़यामत तक चलते रहे। ऐसा काम चले जैसे ख्वाजा अजमेरी ने चलाया, ऐसा निज़ामुद्दीन औलिया ने चलाया। तो मेरी अपनी दिल की ख्वाहिश है ऐसी, और मैं ये चाहता हूँ कि ये ख्वाहिश हम सब पालें, कोई एक जिम्मेदार नहीं है इस काम का। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि एक हम लोग सब मिलकर फिक्र करें कि कैसा मुमकिन हो। एक मेरी दरख्वास्त है। दूसरी चीज़ दरख्वास्त है कि अपनी माँ बहनों में मेहनत चालू करें कि वे ज़िक्रुल्लाह की तरफ लेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से औलाद निकलेगी।
तो ये एक मेहनत करें। और तीसरी और आखिरी बात ये है कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ लेकर आए, यहाँ से फिक्र लेके जाए कि अल्लाह जो है हमको इस काम में मौत तक हमको इस काम में जुड़ने की तौफीक नसीब फरमाए। खाली खाए पिए दावत दिए, बहुत अच्छा डेकोरेशन करिए, ये फजीलत और ये बरकत हमने आपको सुनाई भी नहीं, और इसको बोलने की जरूरत ही नहीं कि आप बहुत अच्छा काम करें। बहुत अच्छा काम सबको करना है, कोई खास जो तो ठेकेदार नहीं है कि भाई काम अच्छा करे तो ये बहुत अच्छे हो गए। हम सबको अच्छे बनना है और सबको इस काम को लेकर चलना है। मेरी ऐसी दरखास्त है कि इतना मजमुआ बैठा हुआ है तो ये इंशाअल्लाह आने वाले मुस्तकबिल में हजरत वाला मुफ्ती खलील रहमान की तरह जो तो काम करने वाला बनेगा इंशाअल्लाह। बनेगा ना भाई? अल्लाह पाक मुझे आपको हर किसी को कहने सुनने से ज्यादा अमल के तौफीक नसीब फरमाए। बातिल दवान मैं कोई आलिम नहीं हूँ, अगर कुछ जबान दराजी या अल्फाज में कोई इधर उधर हो गया है तो मुझे माफी चाहता हूँ। बातिल दवान देखो इधर तो भाई हमारे सिलसिले के एक बहुत कदीम आदमी है नजीब थे, वो बीदर के रहने वाले हैं। बीदर पे हमने बहुत मेहनत किया। बीदर एक अजीब मकाम है। बीदर भी ऐसा ही मकाम है जिसके जो 50 मील लंबा 50 फीट चौड़ा शहर था वो बर्बाद हो गया। उसके ज़मीन में औलिया अल्लाह दफन है, वहाँ के रहने वाले हैं। मैं वहाँ बहुत मेहनत किया लेकिन मामला जमा नहीं। लेकिन फिर अब हालात ऐसे पैदा हो गए कि नजीब जो आपको अपने हालात बताएंगे। और वहाँ के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर ज़ुबैर, बहुत बड़े आदमी हैं, वो भी इस काम में लग गए। आए नहीं वो, उनकी वालदा बीमार है वो। तो नजीब साहब भी थोड़े से अपने हालात बताएंगे, उसके बाद मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा आपको। अगर किसी को कुछ कहना है तो आ जाओ यहाँ। नजीब साहब कुछ अपनी बात बताएंगे थोड़ी सी। हाँ ठीक है, आइए थोड़ा सा बताइए। नजीब साहब ये हमारे सिलसिले के बहुत पुराने कदीम आदमी हैं, बहुत ज़माने से लगे हुए हैं। इनके बच्चे डॉक्टर हैं, थोड़ी सी बात बताएंगे आपको। हाँ है भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आप जो है मुख्तलिफ वाज़ियों से उनकी बशारत में कमालात सुने। मेरी ज़ात में कोई कमाल नहीं है, ये हज़रत की ज़रा नवाज़ी है, ये हज़रत ने जो है मदद किया है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि माँ बाप को जो है पहली औलाद और सबसे छोटी औलाद से ज़्यादा ताल्लुक़ होगा। तो शायद कि पहले में से हम हैं, इसलिए हज़रत ने जो है ये ज़रा नवाज़ी की तरफ बुलाया है। कमालात को हम सुन चुके हैं। मैं जितने साथियों की बातें सुने उनकी बातों को जो है आगे बढ़ाते हुए आपसे एक यही दरख्वास्त करूँगा कि जैसे हज़रत ने 2 दिन के लिए यहाँ पर बुलाया, ये बुलाना बिठाना और यहाँ से बेफिक्री के साथ जाना नहीं है। असल जो जिस फिक्र को लेके जाना है कि हम सारी दुनिया पर अगर नज़र डालें और बिलखुसूस हमारे बर्रे सगीर हिंदुस्तान पर, तो सदियों जहाँ पर खानखां निज़ाम चला और जहाँ से कुतुब अब्दाल मजदूर कलंदर पैदा हुए, वो खानखां या तो घोड़ों की अस्तबल बन गई या मकानात में या खंडरात में तब्दील हो गई और बैराबाद हो गई। आखिरी खानखां जो भोपाल के अंदर थी हज़रत मुजद्दिद अल-ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की, वो भी हज़रत मौलाना शाह याक़ूब साहब रहमतुल्लाह अलैह की विसाल के बाद नहीं के बराबर है। भोपाल के समा में अक्सर हमारा जाना होता है, तो एक मरतबा मैंने ख्वाहिश हुई कि भाई खानखां को जाएँ देखें। एक साथी से पता पूछा, उन्होंने कहा हज़रत क्या तैयारी करते हो, पानी दम कर दे रहे, क्या भी नहीं है, कुछ हो रहा नहीं खानखां में काम, तो आप जाके करते क्या? तो खानखां है बिदर के अंदर भी, हैदराबाद के अंदर भी, आप जहाँ भी जाएंगे खानखां की शक्ल बाकी है या मकानात में तब्दील कर दिया गया या जानवरों को बांधा गया। तो यहाँ तक जो है बेदीनी हो गई और खानखाएं बंद हो गई। तो सबसे पहला नुकसान हमारा क्या हुआ कि हमसे हिंदुस्तान की हुकूमत छीन ली गई। छीने नहीं छीनी, 1000 साल तक यहाँ पर हुकूमत करने वाले हाकिम महकूम बन गए, जो उम्मत दावत थे उम्मत मदू बन गए। हमें दूसरों को बुलाना था, दूसरे हमको दावत दे रहे। तो इसीलिए ये काम का मकसद यही है, जो बार बार बोल रहे हैं कि मैं हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही के बारे में एक बात बताता हूँ
کہ حضرت حاجی امداداللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی عادت تھی کہ اگر شاگردوں کے پاس کوئی خط نہیں آتا تو کبھی کبھی وہی خط لیا کرتے، لکھ دیا کرتے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کو حضرت حاجی صاحب نے خط لکھا کہ بہت دن ہو گئے شاگرد عزیز کے قواعد سے آگاہی نہیں ہوئی کہ بزرگان دین کے الفاظ بہت جامع ہوتے ہیں اور مختصر ہوتے ہیں، ہمارے سر کے لمبے چوڑے تقریریں نہیں لکھتے۔ تو یہاں سے جو ہے اس خط کا جواب حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ حضرت کیا بتاؤں، حالت شریعت حالت طبیعت بن گئی، اور حالت طبیعت حالت شریعت حالت طبیعت بن گئی۔ اور عربی میں جملہ کہا جس کو اردو میں معنی ہے کہ تعریف اور تذہیب دونوں برابر ہو گئے، یعنی کوئی میری تعریف کرے اس سے بھی مجھے طبیعت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی مجھے بے عزت کرے اس سے بھی کوئی طبیعت پر اثر نہیں پڑتا۔ تو کس درجے کی تربیت ہوگی؟ آج ہم تعریف کرنے پر خوش ہو جاتے ہیں، کوئی برائی بیان کرے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور شریعت طبیعت بن گئی، جیسے ہماری طبیعت میں ہے کہ چائے پینا، کھانے کے بعد موز کھانا۔ اب ہماری جو طبیعت ہے کہ اچھے سے کپڑے پہننا، بار بار آئینہ دیکھنا، میں اچھا لگوں اچھا دکھوں لوگ، یہ ہماری طبیعت، یہ مزاج۔ تو وہاں پر شریعت ہی ان کی طبیعت بن گئی، تو اتنی محنت ہوئی۔ تو اصل کام کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہماری جو شریعت ہے وہ ہماری طبیعت بن جائے، اور کوئی تعریف کرے یا کوئی ہماری تصدیق کرے تو ہمارے لیے برابر ہو۔ اور آخری بات جنید بھائی نے جو کہا کہ بھائی ہمارا کوئی مرکز ہو، بات صحیح ہے۔ تو گزشتہ 2 سال پہلے جب یہاں پر اسی طریقے کی مجلس ہوئی تھی تو ساتھیوں نے فکر کی کہ مرکزی طور پر جو ہے یہاں پر اب اندازہ لگائیے کہ جہاں پر خانقاہیں بند ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، لیکن اسی خانقاہ کو اللہ نے حضرت سے دوبارہ آباد اور زندہ کرا رہا ہے۔ اگر ہم اس میں جو ہے اگر تعاون نہ کریں تو ہم سے زیادہ محروم اور بدبخت کوئی نہ ہوگا۔ ہاں، تو اسی لیے جنید بھائی نے جو ہے بہت ذبح الفاظ میں میں کھل کر کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے ایک دیہات ہے نیرلی، جہاں پہ حضرت نے کا مدرسہ بھی ہے اور وہاں پر زمین بھی ہے، تو حضرت نے جو ہے خانقاہ بنانے کے لیے جو ہے اپنی زمین جو ہے دے چکے ہیں۔ اس کا جو ہے فاؤنڈیشن بھی پڑ چکا ہے، لیکن جو پروجیکٹ ہے خانقاہ کا بہت بڑا ہے۔ تو ہم یہاں جائیں، اس فکر کو لے کر جائیں کہ بھئی اگر حضرت ایک آواز لگا دیں گے تو جو ہے آج ایک آدمی بھی جو خانقاہ بنانے کے لیے تیار ہو جائے گا، آج اللہ نے بہت نوازا ہے۔ لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس خانقاہ کی تعمیر میں ہمارے اپنا مال بھی لگے، تاکہ جو ہے ہمارے بعد آنے والی نسلیں کے لیے ایک مرکز ہو۔ ابھی کارکوزہ نے سنے نا کہ وہی جب کام ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، مسجدوں میں رکاوٹ ہو رہی ہے، پھر اگر ہمارا مرکز بنا تو یہ شادی خانہ لینا، یہاں پر آنا، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب خانقاہ بنے گی تو وہاں پر سال کے 12 مہینے اور مہینے کے پورے 30 دن ہم جب چاہے جب آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، جس کو جب بھی وقت ہے اپنی اصلاح کے لیے آ کر رہ سکتے ہیں۔ ہاں، کوئی وقت متعین نہیں رہتا۔ خانقاہ نہیں تو یوں سمجھیے کہ ایک گورنمنٹ ہاسپٹل ہے نا، وہاں پہ 24 گھنٹے میں آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں، بس ایمرجنسی سروس 5:45 ہو گئے، جاری رہتی ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے الحمدللہ انشاءاللہ ہم بھی فکر کریں گے، ہر ساتھی اگر اس کی تھوڑی سی فکر کر لے تو انشاءاللہ امید اس بات کی ہے کہ ہمارا دوسرا جب یہ پروگرام ہو تو اس خانقاہ ہی میں ہوا، اسے امید کرتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ بھائی۔ یہ 5:45 ہو گئے، ابھی آپ فوراً وہ وہاں ہوٹل پہ ہجوم کی شکل میں داخل ہو جاؤ، چائے پانی کر لو، باقی بیان ہوں گا۔ آخر میں میں جو بات کہنا ہے وہ کہہ دوں گا، بیان کے بعد جو ضرورت ہے وہ بتا دوں گا میں آخری بیان کے بعد ساتھ میں۔ اب